Good morning, students. Today we are going to discuss the cumulative numericals on CDF and PDF. CDF और PDF क्या होता है कल हमने डिस्कस कर लिया था cumulative distribution function and probability density function. Cumulative distribution functions are used to calculate the cumulative probability of discrete random variable as well as continuous random variable, while probability density function are used to calculate the probability uh, of a given continuous signal. So क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको हम देखते हैं किस तरीके से हमें पीडीएफ और सीडीएफ को यूज करके सॉल्व करना है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी सीडीएफ और पीडीएफ की, उन सारे प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सीडीएफ और पीडीएफ के बीच में जो रिलेशन था वो भी हमें ध्यान होना चाहिए अच्छे से। पीडीएफ इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग द सीडीएफ विद रिस्पेक्ट टू सम डमी वेरिएबल स्मॉल एक्स, और वाइस वर्सा CDF is obtained by integrating the PDF with respect to integrating the PDF from minus infinite to x dx. Clear? So the question in front of us is, the probability density function is given by the expression a e raised to the power minus b mod x. Here capital X is a random variable whose values lies in the range x equal to minus infinite to x equal to plus infinite. Determine the following. First, the relationship between a and b. Second, cumulative distribution function. Third, the probability that outcomes lies between 1 and 2. तो तीन चीजें हमें डिटरमाइन करनी है। फर्स्ट, जो आपका पीडीएफ का एक्सप्रेशन है वो पीडीएफ का एक्सप्रेशन है ए ई रेस्ट टू द पावर माइनस बी मॉड एक्स। इसमें ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पीडीएफ, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी आपकी पीडीएफ की? The second property of PDF is the area under the PDF curve is always equal to unity. So mathematically it can be written as the integration minus infinite to plus infinite of PDF is equal to 1. The area under the PDF curve is always equal to unity. तो इस इक्वेशन इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या है आपका? So the area under the PDF curve is always unity. So put the value of PDF in equation number 1 and integrate the given values. So here the expression is a e raised to the power minus b mod x. तो mod x को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, आपको पता है। If x is less than 0, your mod x will become minus x. If x is greater than 0, your mod x will become plus x. So here the integration is divided into two parts. First part will be minus infinite to 0. In that integration, your mod x will become minus x, and minus minus will check out to each other, so it becomes a e raised to the power bx dx. The second integration will be 0 to infinite. In that case, your mod x will become positive x, so it will be a e raised to the power minus bx dx is equal to 1. So according to the property number 2, the area under the PDF curve is equal to unity. Use that property to calculate the relation between, to find out the relation between a and b. So here, integrate the given equations, you will get the result. A by b is equal to 1 by 2 और b is equal to twice of a. तो ये फर्स्ट आंसर हुआ आपके फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन क्या था उसका? सेकंड क्वेश्चन ये था कि फाइंड द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि इफ यू हैव अ नॉलेज अबाउट द पीडीएफ वी कैन कैलकुलेट द सीडीएफ। सीडीएफ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैन बी ऑब्टेन एज इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू एक्स पीडीएफ डीएक्स। पीडीएफ को माइनस इनफाइनाइट टू एक्स के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए, यू विल गेट द सीडीएफ। कल हमने डिस्कस किया था। पीडीएफ की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, पुट दैट वैल्यू हियर एंड सॉल्व इट। इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, इफ x इज लेस देन 0, if x is less than 0 then mod x will become minus x, minus minus will check out to each other, so it will become a e raised to the power bx dx. Integrate that value, you will get cdf is equal to a by b e raised to the power bx. a by b is equal to 1 by 2 हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया, इसमें लिखा था कि फाइंड रिलेशन बिटवीन a and b के बीच रिलेशन क्या था? a by b is equal to 1 by 2. So put the value here. The final expression of CDF for x is less than 0 will become half of e raised to the power bx. Second condition is that, in second case is that when x is greater than 0, in that case your integration again divided into two parts. First part will be the minus infinite to 0, and second one is the 0 to x. So solve that integration here.
So after solving the given integration, the corresponding value will be half of twice e half of 2 minus e raised to the power minus bx. So in combined form, the CDF can be written as half of e raised to the power bx for x less than 0, half of bracket 2 minus e raised to the power minus bx bracket closed for x greater than 0. This is the required expression of CDF for a given PDF. Third condition, third question क्या था? Find the probability that outcomes lies between 1 and 2. आपको पता होगा हम प्रॉपर्टी नंबर 4 जो हमने डिस्कस किया था पीडीएफ का, प्रॉपर्टी 4 क्या थी? ये थी प्रॉपर्टी 4. Probability of the event that capital X lie between x1 and x2 is simply given by the area under the PDF curve in the range x1 to x2. So probability that capital X lie between x1 and x2 will be integration from x1 to x2 of PDF dx. तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको? यहाँ पर रेंज हमारे पास क्या दिया? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल लाई विद इन द रेंज ऑफ 1 and 2. तो वहां पर x1 क्या हो गया 1, x2 क्या हो गया 2. पुट दैट वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन, यू विल फाइंड द corresponding probability. यहाँ पे यही हुआ है. क्वेश्चन है the probability that outcomes lie between x and x is given by that expression. ये फॉर्मूला है हमारे पास. So in the given question, x1 is equal to 1, x2 is equal to 2. We would put the value here and solve it. So the final value or the final probability for the random variable capital X lie between 1 and 2 is given by half of e raised to the power minus b minus e raised to the power minus twice of b. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, सेमेस्टर एग्जाम में आया था. इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो हम नहीं सॉल्व कर सकते थे. इसमें हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूलाज पता है, हमें प्रॉपर्टीज पता है. विद द हेल्प ऑफ दीस फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टी वी कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो हमारे सामने आएगी. क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है the cumulative distribution function, the CDF for a discrete for a certain random variable is given as, this is the value of a CDF. रेंज है माइनस इनफाइनाइट टू 0 के लिए CDF की वैल्यू 0 है, 0 to 10 के लिए CDF की वैल्यू है kx स्क्वायर, और 10 to इनफाइनाइट के लिए CDF की वैल्यू है 100 की. क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने है. CDF की वैल्यू हमारे सामने गिवन है. CDF की वैल्यू को उन्होंने 3 पार्ट में ब्रेक कर रखा है. माइनस इनफाइनाइट टू 0 के लिए CDF की वैल्यू 0 है, 0 to 10 के लिए CDF की वैल्यू kx स्क्वायर को फॉलो कर रही है, और 10 to इनफाइनाइट के लिए CDF की वैल्यू 100k को फॉलो कर रही है. क्लियर है नहीं क्लियर? पूछा क्या गया हमसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू पूछी गई है. फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X इज लेस देन इक्वल टू 5. वो CDF की वैल्यू पूछ रहा है 5 के लिए. मैंने बताया था ना CDF क्या होता है. CDF representing the probability that a random variable capital X is less than equal to small x. यहाँ small x क्या हो गया? 5 हो गया. यही पूछ रहा है. Find the value of p, x is less than equal to 5. Third, find the value of p, find the probability p that x is lie between 5 and 7. तो अभी हमने ऊपर इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हम फाइंड कर रहे थे कि x की 1 और 2 के बीच में लाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो हमें क्या करना पड़ता है? हम पीडीएफ निकालते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं 1 से 2 के लिए. यहाँ पर 1 और 2 की जगह क्या आ गया? 5 और 7 आ गया. तो हमारे पास क्वेश्चन में CDF दिया है, पीडीएफ निकालेंगे, पीडीएफ निकालने के बाद उसको 5 to 7 के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर. लास्ट में लिखा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पीडीएफ. ये चारों चीजें हमें देखनी है, कोई कठिन चीज नहीं है. सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे CDF, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए मैंने वहां पे CDF के लिए इक्वेशन बताई थी. आपको इक्वेशन क्या थी? आपको वापस देख लेते हैं एक बार फिर से. ये था आपका, है कि नहीं? For a given random variable, your CDF is defined if your function is defined from within the range from x1 to xn, यानी x1 से xn के बीच में आपको फंक्शन डिफाइन है. तो माइनस इनफाइनाइट टू x1 के बीच में तो कोई भी इवेंट नहीं होगा. जब कोई इवेंट नहीं होगा तो उसका सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 0 हो जाएगा. तो उसकी वैल्यू 0 होगी. x1 से xn के बीच में सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का सम ही रिप्रेजेंट करेगा उसके CDF को. और xn से इनफाइनाइट के बीच में चूंकि सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का सम xn से पहले ही हो चुका है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुकी है और प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर जा नहीं सकती है. तो xn टू इनफाइनाइट के लिए स्पीड CDF की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. तो ये हमने CDF में डिस्कस किया था. इसी को यूज करके हम अभी आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. तो देखते हैं किस तरीके से सोल्यूशन किया गया है. वही सेम जो मैंने वहां पे दिखा है, यहाँ पे लिखा है वी नो दैट फॉर द CDF if you have a range from x1 to xn, so for minus infinite to x1 you have a 0 value. From x1 to xn you have the summation of all the probabilities presented at x1 x2 x3 up to xn, and for xn to infinite the sum of all probabilities equal to 1. So it is 1. So compare the given bracket values
कंपेयर द गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन विद द गिवन इक्वेशन। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, तो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वन कब है, एक्सटेंड टू इनफाइनाइट के लिए आपकी वैल्यू क्या होती है, सीडीएफ की वन होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है आपका, 10 टू इनफाइनाइट के लिए इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 100 के गिवन है। यानी आपका फंक्शन केवल 0 से 10 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 10 के ना बाहर जा रहा है, ना लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। तो 10 से ऊपर कुछ भी होगा, आप 10 की बात करिए, 11 की बात करिए, 20 की बात करिए, इनफाइनाइट तक की बात कर लीजिए, 10 पे कोई इवेंट नहीं है, 11 पे कोई इवेंट नहीं, 20 पे कोई इवेंट नहीं, 100 पे कोई इवेंट नहीं है। लेकिन 10 से पहले सारे के सारे इवेंट हो चुके हैं, तो सारे के सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी, 1 रही होगी। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके उन्होंने ये कहा कि 100k इज इक्वल टू 1, ये लिखा है। सो कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद द गिवन इक्वेशन, 100k इज इक्वल टू 1, so k इज इक्वल टू 1 बाय 100। तो पहला हमें आंसर मिल गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k इज इक्वल टू 1 बाय 100। सेकंड क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X इज लेस देन इक्वल टू 5। अब हम कैपिटल X इज लेस देन इक्वल टू 5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट के लिए, वन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, 4, 5, सबको निकाल के सबको हम ऐड कर दें, तब हमें जाके मिलेगी प्रोबेबिलिटी दैट द CDF दैट x इज लेस देन 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 5 तब हमें मिलेगी। एक और इन्होंने सोल्यूशन यहाँ पे दे रखा है कि इन्होंने डायरेक्टली इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है, इफ योर CDF इज लाई बिटवीन 0 टू 10, तो वो फॉलो कर रहा है kx स्क्वायर को। तो सीधी सी बात है, आपका क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट p इज लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या होगा, 0 टू 5, क्योंकि 0 से पहले तो 0 ही है, वो दिख ही रहा है ऊपर वाले में, माइनस इनफाइनाइट टू 0 के लिए तो CDF वैल्यू 0 है। 0 टू 5 के लिए बात की जा रही है, तो 0 टू 5 के लिए वो किसको फॉलो कर रहा है, किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, kx स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, kx स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। So put the value x is equal to 5 here. Why? Because the range is 0 to 5. Put the value is 5 here. So you will get k into 5 square, that is 25k, k is equal to 1 by 100. So it will be 1 by 4. यही किया है यहाँ पर, ठीक है ना, के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 5 रखी है, इट्स बिकम 25, के इज इक्वल टू 1 by 100, इक्वल 1 by 4। थर्ड पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the random variable lie between 5 to 7, and fourth पूछा हुआ है find the PDF। दोनों यहाँ पे फटाफट हो जाएगा ना, PDF की प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट होने से रही, तो क्या करना है, पहले हम PDF कैलकुलेट करेंगे। PDF कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले से पता है कि वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द CDF। CDF गिवन है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, पहली रेंज क्या आती है, माइनस इनफाइनाइट टू x1, तो माइनस इनफाइनाइट में आप तो x1 के लिए CDF की वैल्यू क्या थी, 0, डिफरेंशिएट करेंगे अगेन 0 हो जाएगी। आगे x1 टू आपकी एक्स 10 तक था, सॉरी 10, 0 टू 10, 0 टू 10, 0 टू 10 माइनस इनफाइनाइट टू 0 के लिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। 0 टू 10 के लिए वो क्या था, के एक्स स्क्वायर। तो के एक्स स्क्वायर को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बिकम ट्वाइस ऑफ के एक्स, के नीचे लिखा हुआ है देखिए, फॉर 0 टू 10 बिकम ट्वाइस ऑफ के एक्स। थर्ड क्या था आपका, फॉर 10 टू a प्लस इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू कितनी थी, 100 के, 100 की इज अ कांस्टेंट, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द 100 के विद रिस्पेक्ट टू x, इट बिकम 0। तो यहाँ पर आपका पीडीएफ क्या हो गया, पीडीएफ आपका 0 हो गया माइनस इनफाइनाइट टू 0 के लिए, पीडीएफ आपका 0 हो गया 10 टू इनफाइनाइट के लिए। वो केवल किस रेंज के लिए लाई कर रहा है, it will lie only the range from 0 to 10, the value of pdf will be twice of k into x now। So for getting the probability that x will lie between 5 to 7, integrate the given expression with from 5 to 7, you will get your answer। So find the probability that capital X lie between x and 2. Integrate the given equation, put the value 2kx here, PDF here, and integrate it, you will get your answer, that is 24k, k is equal to 1 by 100, so 24 by। तो ये भी क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन था, आपने देखा क्या अप्रोच है, किस तरीके से सॉल्व करना है। हमारे पास चाहे पीडीएफ गिवन हो, सीडीएफ पूछ रहा हो, चाहे सीडीएफ गिवन हो, पीडीएफ पूछ रहा हो, दोनों चीजें हमें मिल जाती है आराम से। अगर लेस देन इक्वल टू 5 पूछ रहा है तो सीडीएफ यूज करेंगे, अगर रेंज में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पूछ रहा है तो पीडीएफ यूज करेंगे। क्लियर ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंडम प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस कह लीजिए, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, जिस एक्सपेरिमेंट में हम रैंडम वेरिएबल को यूज करते हैं उसे हम रैंडम प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि उसमें जो भी प्रोसेस हमने की उसमें हमें फाइनाइट वैल्यू तो मिली नहीं, हमें क्या मिला, इन मतलब अनसर्टेन वैल्यू मिलने वाली थी, तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, रैंडम प्रोसेस कहते हैं। सो अ रैंडम प्रोसेस प्रोवाइड मेजरमेंट x between the value 0 and 1 with the probability density function is given। यानी एक हमारे पास कोई फंक्शन था, उसको हमने x से रिप्रेजेंट किया है, और 0 टू 1 के लिए जब हमने ऑब्जर्व किया स्क्रीन से 0 टू 1, तो उसका पीडीएफ ये मिला हमको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये मिला, आपके सामने लिखा हुआ है 12x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 10x, और 0 टू 1 बाकी सारी वैल्यूज के लिए उसकी वैल्यू 0 मिल रही थी। ये पीडीएफ हमें गिवन है एक फंक्शन का, एक रैंडम प्रोसेस का। क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, डिटरमाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट,
find the probability that x is less than equal to half. Second, find the probability that x is greater than half. अब चलिए यहाँ पर आपका जो प्रोबेबिलिटी लाई कर रहा है 0 to 1 की, पूछ कर रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू हाफ. लेस देन इक्वल टू हाफ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x लाई बिटवीन 0 to हाफ. क्या फर्क पड़ता है, आपकी रेंज ही 0 to 1 है. अगर आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू हाफ, और यू कैन राइट इट डाउन एज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x लाई बिटवीन 0 to हाफ, क्योंकि 0 से पहले तो 0 ही है. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लाई बिटवीन 0 to हाफ. उसके मैं आपको फॉर्मूला पहले से ही पता है. आप जानते हैं कि अगर x1 से x2 के बीच में कैलकुलेट करना है लाई करने की प्रोबेबिलिटी, तो यू नो द फॉर्मूला दैट इंटीग्रेट द गिवन पीडीएफ विद फ्रॉम x1 टू x2. तो यहाँ पे 0 x is less than half can be written as probability find the value of the probability of x that lie between 0 to half. यहाँ पे पुट कर दिया x1 equal to 0, x2 equal to half. Put that value here, integrate and solve the value, you will get your answer is equal to 9/16. क्लियर है कि नहीं क्लियर? सिंपल है, सोच का तरीका है. आप कहेंगे सर इससे बढ़िया पीडीएफ निकाल, पीडीएफ में तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं. पीडीएफ है तो सीडीएफ निकालने के लिए उसे इंटीग्रेट करिए, तो भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते थे. लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो पीडीएफ से डायरेक्टली निकल रही चीज है, कोई जरूरत नहीं पीडीएफ के पास जाने की. अल्टीमेटली दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, तो अगर आप पीडीएफ के थ्रू भी निकालेंगे तो भी यही आंसर आने वाला है. आगे चलते हैं. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन हाफ. अब एक बात समझ लीजिए कि आपकी रेंज क्या थी, 0 to 1. तो 0 to 1 में पहली प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू हाफ उसने पूछ दी, तो बाकी क्या बची? ग्रेटर देन हाफ. टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है. लेस देन इक्वल टू हाफ की प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट कर ली, तो ग्रेटर देन हाफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस x is less than equal to half. 1 minus 9/16 will provide the probability that x is greater than half. It will be 1 minus p probability of x is less than half, 9/7/16. आप greater than half का भी निकाल सकते थे. greater than half के लिए आप ऐसे भी लिख सकते थे x is greater than half but less than 1, क्योंकि 1 ही तक जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. पीडीएफ को इस फॉर्मूले में जो लिमिट आपने रखी है 0 to half, वहां पे आप रखते half to 1, ऐसे भी कर सकते थे. आंसर सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचेंगे तो लेस देन हाफ के लिए तो उसने ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, ग्रेटर देन हाफ के लिए पूछ रहा है, तो 1 माइनस दैट वैल्यू कर दीजिए, विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग. सो थर्ड क्या पूछ रहा है? ऑब्टेन अ नंबर k सच दैट द प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन k इज इक्वल टू हाफ. यही पूछ रहा है कि एक ऐसी वैल्यू है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं लेस होने की, मतलब x इज लेस देन k की प्रोबेबिलिटी जब निकाल रहे हैं तो हाफ आ रही है. तो कोई बात नहीं है, लेस देन इक्वल टू k की मतलब क्या हुआ? लेस देन इक्वल टू k कहां तक जा रहा होगा? मिनिमम 0 तक जा रहा होगा. 0 टू k, तो 0 टू k के लिए हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे, और वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है हाफ आने वाली है. रख के सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन मिलेगी k की, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फोर्थ पावर में इक्वेशन मिलेगी, सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू ऑप्टेन मिल जाएगी. देख लेते हैं. पूछ रहा है find the value of k if the probability that x is less than equal to k is equal to half. So यहाँ पर less than equal to k को हम ऐसे लिख सकते हैं, find the probability that x is lie between 0 to k. 0 to k के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, वही ऊपर वाला, x1 equal to 0, x2 equal to k. Put integrate the pdf and after integration you will get that equation. Equation contain the order of 4, degree of 4. So 6k raised to the power 4 minus 14k cube plus 10k square minus 1 equal to 0. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए कैलसी की हेल्प से. द रिक्वायर्ड आंसर विल बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज लाई बिटवीन 0 and 1. सो k is equal to 0.453. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हैं जो कि इजीली सॉल्व हो जाएंगे. आगे चलते हैं. ये भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम का. डिटरमाइन whether the function given by expression is a density probability density function or not function. मतलब ये जो फंक्शन आपके सामने गिवन है, पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं फंक्शन है. अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए दो कंडीशन उन्होंने यहाँ पे चेक की है. पहली कंडीशन क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. प्रोबेबिलिटी है तो हमेशा 0 ही, कभी नॉन नेगेटिव नहीं हो सकती. तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कि फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 इट इज अ नॉन नेगेटिव वैल्यू, इट इज अ नेगेटिव वैल्यू. नहीं, कहीं नेगेटिव नहीं है. x इज लेस देन 2 के लिए 0 है, 0 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. 2 से 4 के लिए भी अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में कुछ भी पुट करेंगे तो आपकी पीडीएफ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी है. x ग्रेटर देन 4 के लिए ऑलरेडी 0 है, इसका मतलब ये टोटल पॉजिटिव वैल्यू है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? इफ एनी फंक्शन इज पीडीएफ देन इट सैटिस्फाई फॉलोइंग टू कंडीशन. फर्स्ट, द पीडीएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि हमें प्रूव किया अभी हमने ऊपर देखा कि इफ यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x, तो हमें सारे कंडीशन में इसकी क्या वैल्यू मिली थी? पॉजिटिव मिल रही थी. सेकंड कंडीशन है कि द इंटीग्रेशन यानी द एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व इज यूनिटी. ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम उसको जो गिवन रेंज है उस गिवन रेंज में इंटीग्रेट कर देंगे. और सेकंड कंडीशन,
इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास रेंज क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू 2, 2 टू 4, 4 टू इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट टू 2 के लिए पीडीएफ की वैल्यू क्या गिवन थी, 0 थी, खत्म हो गया। 2 टू 4 के लिए जो पीडीएफ गिवन था उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, 4 टू इनफाइनाइट की पीडीएफ वैल्यू 0 थी, वो भी खत्म हो गया। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके 2 टू 4 की वैल्यू पुट कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब कि ये गिवन फंक्शन एक पीडीएफ फंक्शन है। दो प्रॉपर्टी को इसने प्रूव किया। पहली प्रॉपर्टी, इट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव वैल्यू, एंड सेकंड वन, इट इज द एरिया अंडर द पीडीएफ सर्विस यूनिट। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज अ सीडीएफ और नॉट। बहुत सिंपल बात है, सीडीएफ है कि नहीं इसको कैलकुलेट करने के लिए ऊपर वाली प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इफ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दैट सीडीएफ, वी विल गेट द पीडीएफ। अगर पीडीएफ की प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो डेफिनेटली ये जिससे डिफरेंशिएट होकर आ रहा है वो सीडीएफ होगा ही होगा। क्लियर है कि नहीं? तो पीडीएफ गिवन है, सीडीएफ गिवन है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो एक्स इज लेस देन माइनस ए के लिए वैल्यू 0 ही रहेगी। माइनस ए टू ए के लिए जब आपको डिफरेंशिएट करेंगे, ए हो जाएगा 1/2 ए। एक्स ग्रेटर देन ए के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा क्या, 0। तो पीडीएफ क्या हो जाएगा? फाइनली योर पीडीएफ विल बी 1/2 ए फॉर माइनस ए टू ए एंड 0 अदरवाइज। नाउ कंडीशन चेक कर लीजिए, क्या ये वैल्यू आपको नेगेटिव दिख रही है? नहीं, ये तो नेगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव वैल्यू है। 1/2 है तो पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इस पहली कंडीशन ट्रू है। दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है, द एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व इज ऑलवेज यूनिटी। तो इंटीग्रेट कर लीजिए, माइनस इनफाइनाइट टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो रेंज क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए, माइनस ए टू प्लस ए, 0। माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए के लिए वैल्यू 0 होगी, माइनस ए टू प्लस ए की वैल्यू क्या थी, 1/2 है, और ए टू इनफाइनाइट की वैल्यू 0 थी। सॉल्व कर लीजिए, तो वैल्यू में क्या आ जा रही है, 1 आ जा रही है। सिंस द फंक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ अ पीडीएफ, दिस मीन दैट द गिवन फंक्शन इन द क्वेश्चन इज अ सीडीएफ। कि ये पीडीएफ कैसे निकाला आपने, सीडीएफ को डिफरेंशिएट करके निकाला, ये वैल्यू पीडीएफ को होल्ड कर रही है, इसका मतलब ये जहां से आ रही है वो फंक्शन क्या होगा आपका, सीडीएफ होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो देख रहे हैं आप, पीडीएफ पीडीएफ पे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं। सारे क्वेश्चंस को लगा लेंगे, सारे एग्जाम में आए, एक तरीके से रिपीटेटिव ही आते हैं क्वेश्चंस, और एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, वो सारे के सारे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज हम क्वेश्चन ही डिस्कस करना चाह रहे थे। आज के लिए थैंक यू, फिर कल मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ।